हेलो फ्रेंड्स। सो पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देख चुके हैं सेक्शन 1 to 5 और अब हम देखेंगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एपीआईयू एंड पीआईयू और आगे की सेक्शंस। आगे के सेक्शंस जानने के लिए देखिए पार्ट 3 ऑफ आरटीआई 2005। केवी से कौन कौन है? बहुत लोग हैं केवी के। मेहरा जी, अजंता, so many are there, nobody is speaking. Sir, actually, PIO is the principal, as you have told, and in those schools where vice principals are not there, there the senior most PGT is appointed as APIO, and otherwise the vice principal is appointed as APIO, sir. APIU तो सेम है। जी sir. यस, नवोदय में भी वही है। Principal is the PIU and vice principal is the API. If vice principal is not there, तो they may appoint some other officer, है ना। तो किसी न किसी को OS को किया होगा या किसी सीनियर मोस्ट PGT को किया होगा। तो सिमिलर रूल्स आर देयर, ठीक है। देन मतलब ये था कि 120 plus 100, 220 days time was given by the government to implement all this, है ना, act इन गवर्नमेंट इन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। इन टोटो जो हमने बोला भाई रूल्स में जो प्रिंट किया है ये 220 दिन के अंदर पूरा आ जाना चाहिए काम में, और वो हो गया। दैट वाज एन इम्प्लीमेंटेड। ईच एंड एवरी ऑफिसर्स अपॉइंटेड PIU एंड APIU। देन ड्यूटीज क्या है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ दिस PIU एंड APIU? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ APIU: receives application for information of appeals under the act and forward it to PIU. APIU का रोल क्या है भाई? जो भी किसी ने इंफॉर्मेशन मांगा है, application, he will receive the application, then he will forward to PIU. or suppose somebody has gone to appellate authority, PIU के ऊपर appellate authority होता है, तो appellate authority को फॉरवर्ड करे, या जिसको भी उसने एड्रेस किया है, और इंफॉर्मेशन कमीशन को उसने अगर किया है कि PIU has not provided information, तो then he can go to appellate authority. Appellate authority has not provided information, so he can go to commission. So his duty is to forward his application to the concerned authority. ठीक है, he will not provide information. APIU will not provide information. Who will provide information? Information will be provided by PIU. Then duties and responsibilities of PIU. PIU की क्या ड्यूटी है? He will accept request for information, render reasonable assistance to citizen requesting for information, reduce oral request into writing, and assist sensorily disabled person. तो इसका काम है भाई खाली सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करना, हमको प्रॉपर गाइड भी करना है कि इन्फॉर्मेशन अगर कोई किसी को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो भाई कब करोगे, कैसे करोगे, कब हम करवाएंगे आपको इंस्पेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो, है ना। और ओरल काम नहीं भाई, जो भी करना है राइटिंग में करो, है ना। काउंसिल द कंसर्न्ड एप्लीकेंट ऑल्सो प्रॉपरली। अगर कोई डिसेबल्ड आदमी है, सेंसरी डिसेबल्ड पर्सन है, तो उसको फिर वो असिस्ट भी करेगा भाई कि किस तरह से। कोई ब्लाइंड है तो कोई दूसरा आदमी भाई ठीक है वो आपको पढ़ के बता देगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉपी चाहिए, वो दे देगा। तो ही विल असिस्ट द disabled person also. Then seek assistance to any other officer where necessary. Such officer shall be treated as PIO. Then disposal of request भी यही disposal करेगा। Seek assistance means अगर suppose information इसके पास नहीं है, he wants information, कोई other section में some other officer is in charge, प्रिंसिपल को पूछ लिया इन्फॉर्मेशन, अब प्रिंसिपल के पास है नहीं भाई, द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द रीजनल ऑफिस, तो he can redirect, है ना, that application to the concerned authority. और सपोज कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से है, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, तो इफ ही वांट्स ही कैन, है ना, आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड देन प्रोवाइड आल्सो। बड़े ऑफिस में क्या होता है कि डिफरेंट सेक्शंस आर देयर, हेडक्वार्टर है, रीजनल ऑफिस है, अकाउंट सेक्शन अलग है, एडमिन अलग है, एस्टेब्लिशमेंट अलग है, पर्सनल अलग है, एकेडमिक अलग है। All the applications will come to PIO. Then PIO will collect the information from the concerned officer. He will certify it, है ना, उसको
endorse करेगा after verifying the original, and then certified copy of that information will be provided to the applicant. तो रिक्वेस्ट का डिस्पोजल कौन करेगा? अल्टीमेटली he will dispose the request, means he will submit the reply to the applicant, then communicate the right to appeal and the details of the appellate authority to whom the applicant can appeal. ये भी important है. Suppose tomorrow you become PIO, तो आपको उसको क्या क्या उसमें प्रोवाइड करना है when you are giving reply to him. Information if it is available, you provide, है ना, कि भाई the desired information है is enclosed, certified copy of the desired information is enclosed, वाइड जो भी उसका नंबर है, कोई लेटर है, कोई मेमो है, जो भी रिकॉर्ड आप दे रहे उसका, है ना, डिटेल्स. देन आपको ये भी देना पड़ेगा कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी, तो यू कैन मेक एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी whose name is this, whose designation is this, whose address is this. उसको उसका पूरा डिटेल भी प्रोवाइड करना जरूरी है रिप्लाई में अपीलेट अथॉरिटी का, ताकि उसको पूछना ना पड़े कि भाई मेरे को सेटिस्फाई नहीं हो इन्फॉर्मेशन से, मेरे को बताओ मैं किधर जाऊं. पहले ही आपको देना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट ही है, ठीक है ना. जब व्हेन यू डिस्पोज द रिक्वेस्ट ऑफ एन एप्लीकेंट, यू हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी आल्सो इन दैट एप्लीकेशन. उसमें लिखना पड़ेगा कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी, you can make an appeal to such and such authority whose particulars are as under. क्योंकि रूल में लिखा हुआ है, सेक्शन में लिखा हुआ है कि बताना है तो बताना पड़ेगा हमको, ठीक है. देन सेक्शन 6(1) accepting request for information. PIO और APIO shall accept request in writing or electronic means. कोई भी ऑफिसर है ना, भाई डीसी है बैठा हुआ रीजनल ऑफिस में, कोई एप्लीकेशन आ गया तो डीसी इज नॉट सपोज टू, है ना, रिसीव दैट एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन शुड ऑलवेज बी एड्रेस्ड टू PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करना है एप्लीकेशन, तो दे विल रिसीव. और APIO का काम क्या है कि ही विल फॉरवर्ड टू कंसर्न PIO. तो ऑलवेज एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू PIO और APIO, पर इट शुड बी इन रिटन फॉर्म. ये आप मेल भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप भेज सकते हो, ठीक है. और ये आप टुमारो यू आर गोइंग टू बिकम PIO, तो आप रिसीव कर सकते हो, ये कहना चाहिए. भेजने के लिए तो आप एप्लीकेंट बन जाओगे, कल से भेजना शुरू कर दोगे. तो ना यू हैव टू सी टुमारो यू आर गोइंग टू बिकम PIO, तो कोई आपको राइटिंग में दे या मेल आ गया तो बोले नहीं भाई मेल आ गया, आई विल नॉट एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है. इन इंग्लिश, इन हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया. रिटर्न एप्लीकेशन क्या हो सकती है? आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, और आप जिस स्टेट में बैठे हो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज. सपोज इफ यू आर पोस्टेड इन महाराष्ट्र, तो ही कैन सबमिट द एप्लीकेशन इन मराठी. गुजरात में हो तो गुजराती, ठीक है. जिस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिस स्टेट में आपका ऑफिस है, उस स्टेट की लैंग्वेज में भी वो एप्लीकेशन भेज सकता है. अब आप बोलोगे कि मेरे को नहीं आती मराठी, तो दैट इज नॉट द एक्सक्यूज. यू हैव टू गेट इट ट्रांसलेटेड फ्रॉम द कंसर्न, जब जो भी आपका होगा ट्रांसलेटर, उससे ट्रांसलेट करवाइए. अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में आ गई, स्टेट की लैंग्वेज में आ गई, तो यू कैन नॉट रिजेक्ट कि भाई ये तो इसने मराठी में भेज दिया, मैं क्या करूँ, मेरे को तो सिर्फ इंग्लिश आती है, तो यू कैन नॉट से दैट, है ना. तो ही कैन सबमिट द एप्लीकेशन. यू हैव टू रिसीव दिस एप्लीकेशन इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो ऑफ द स्टेट, accompanied by prescribed fee. प्रिस्क्राइब्ड फी है, प्रिस्क्राइब्ड फी कितनी है उसकी भाई बताइए? 10 rupees. 10 रुपीज. 10 रुपीज इज द प्रिस्क्राइब्ड फी है, ठीक है. और वो भी मैंडेटरी नहीं है सबके लिए, किसके लिए छूट है वो भी देख लेंगे. एंड विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस. ये इंश्योर करो भाई जो एप्लीकेशन किया है उसका नाम है, पूरा एड्रेस वगैरह दिया है उसने अपनी, ठीक है, मोबाइल नंबर सब दिया है, उसका डिटेल होना जरूरी है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट विद पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड. क्या इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो क्लियरली उसने मेंशन करना चाहिए स्पेसिफिकली कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही रिक्वायर्स. और एक चीज ध्यान रखो कि PIO इज नॉट सपोज टू आंसर द क्वेरीज. किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई जवाब उसका देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज PIO इज नॉट सपोज टू आंसर द क्वेरीज. ही कैन प्रोवाइड ओनली इंफॉर्मेशन इन मटेरियल फॉर्म. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन मटेरियल फॉर्म, जवाब देना नहीं। जवाब देना था भैया कंसर्न ऑफिसर के पास, जब वो उसको पूछ ले। मेरी जिम्मेदारी नहीं कि इसको मैं क्लैरिफाई करूं कि रूल पोजीशन क्लैरिफाई करो। नेवर, है ना, रिप्लाई टू एनी क्वेरीज। स्ट्रेट वे यू कैन राइट इन दी योर डिस्पोजल कि भाई आई एम नॉट सपोज टू, है ना, क्लैरिफाई। इफ यू एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट टू द फलाना फलाना ऑफिसर्स। If you want any information in material form, you give me particular of that information, I will provide if it is available in my office. तो ये ध्यान रखना कि यहाँ लोग बहुत गलतियां करते हैं, क्लैरिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं और गलत सलत हो जाता है, फिर मुश्किल होती। तो PIO इज नॉट सपोज टू, है ना, आंसर एनी क्वेरीज। ये नोट कर लो, ठीक है। आता है कई बार क्वेश्चंस कि somebody ask, है ना, questions। Sir, one doubt, sir. हाँ बोलिए। If somebody is asking, for example, whether the result of class JNVST is published or not, this is the question. Is the PIO is You supposed need not to to reply any questions. अब बता दो कि I am not supposed to reply any questions. If you want any information in material form, I will provide. then they can ask. उसका जो है, the person who can clarify your question, है ना, who is such and such person, you can, है ना, approach to him. I am not the Okay. authority. Can If they you are ask? acting as PIO, Okay, can they ask the total number of the students who admitted in the year of 2022? Can they ask this question? so if he is asking any information which is available in material form from me, है ना, with my office, so then I will provide the list. हाँ ठीक है, number he is asking and number is available in material form, you provide that information. Don't reply him because the desired information is enclosed. That's all. Why ये जो भी है उसका letter number ये वो that you can mention and you provide it certified copy. Always it should be certified. The information which you are going to provide to applicant should be certified. अटेस्ट करना है उसको, PIO का सील लगाओ, साइन करो, फिर प्रोवाइड करो डेट डाल के, अटेस्टेड कॉपी बोल, ठीक है। तो even if somebody is asking any question and the question he has asked is available on material form, कि how many this है ना LDCs are working, और पूछ दिया आपके ऑफिस में, तो I am not supposed to, मैं तो बता दिया था सर ने कि भाई क्वेश्चन पूछा, जवाब नहीं देना। तो if staff strength is available with you, you just provide, okay ठीक है भाई, ये I am enclosing the copy of the staff strength of this office। दो है, Excuse me, चार है, sir. कितने कब सैंक्शन हुए, क्यों हुए, वो दैट आई एम नॉट सपोज टू, ठीक है। और ये जनरली क्या होगा कि स्टाफ स्ट्रेंथ विल बी अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट। इफ इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय हिम इज अवेलेबल, डाटा इज अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट, तो देन इट, इन सच केसेस यू कैन राइट टू हिम कि डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ JNV, है ना, सच एंड सच। यू कैन गो थ्रू, उसका एड्रेस भी दे दो। द वेबसाइट एड्रेस इज दिस, www जो भी आपका है ना, वो एड्रेस दे दो। लेट हिम गो। अगर इफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन हेडक्वार्टर्स वेबसाइट, इफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन RO's वेबसाइट, इफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन योर वेबसाइट, यू जस्ट गिव हिम एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट, लेट हिम सर्च एंड देन डाउनलोड, और उसको बोल दो कि यू कैन डाउनलोड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट। हाँ बोलिए Excuse जी। me, sir. Excuse me, sir. हाँ यस। Sir, the applicant's name is the applying person is one, and the address he is giving the lawyer's address, sir. Can we give the reply to that one, or He what to has be to give done, his sir? own address, na. Lawyer's address क्या देगा? Anyway, whatever address he has given, somebody is asking and he address, whatever address he is giving, you just forward it to that address. हमको क्या करना है? But You need according not to to one worry rule, about it. Whatever है ना, friends. तो ये वीडियो we will stop here itself, and आगे की सेक्शन आप जानने के लिए देखिए part 4. Thank you.